Okay, so let's start with neuroanatomy today. We have already done almost every portion of anatomy has been already done. 6-7 टॉपिक थे जो इससे पहले वाले वो सारे मैंने करवा दिया. अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स एब्डोमेन, एब्डोमेन एंड पेल्विस, पेल्विस एंड पेरिनियम, सारी टॉपिक्स क्या है अवेलेबल है चैनल्स पे. यू कैन गो एंड जस्ट वॉच दैट. Now it's time to do the biggest portion and the most asked question. ये बहुत ज़्यादा asked question है न्यूरो एनाटॉमी में से. This is one of the portion that you can't leave before examination, and I'll bet you कि after this session, that is 30 or 35 minutes later, you will be good to go with any questions in the neuro anatomy. क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी के questions एक सॉल्व नहीं करेंगे. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके चारों ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसमें क्या और पूछा जा सकता है जो उसके बुलेट पॉइंट्स है वो भी उसी के साथ कर लेंगे. So that will be good to go just before the examination. If you watch this video, you'll be very good to go with this neuroanatomy portion, and that will be worth doing it because this topic, the questions are being asked multiple times in every examination. ठीक है. So चलो शुरू करते हैं. Everybody knows about this. I don't want to just keep on saying that and adding that because everybody knows the value of neuroanatomy in the anatomy portion. So let's start. The first question they are telling here is corticospinal tract crosses the midline at the level of. Very important question. If you have watched Dr. Ajam's generally LRR session, Ajam sir's LRR session, that is there he will be just emphasizing on this topic so much so that he will just ask you to do this before examination. Sure, do this because it will give you the permanent marks. There will be surely one or two questions from this portion. So let's start. The pyramidal tract. If we talk about, let's do the pyramidal tract. If we talk about pyramidal tract, the answer is lying in this slide only, this much portion only, this whole portion the answer is lying for every this tract question. So let us talk about the pyramidal tract. What is pyramidal tract? Pyramidal tract, the first question they are asking, either it is ascending tract or descending tract. So let's see. Pyramidal tract is a descending tract. Okay, it is a descending tract which comes from the cortex to a spinal cord. ठीक है, फ्रॉम द कॉर्टेक्स, सेरेबेलर कॉर्टेक्स, cerebral cortex to the spinal cord, so that it is called as corticospinal tract. So it is coming from the cortex to spinal cord. So this is a descending tract. So this is a descending tract, and the crossing takes place at the level of the pyramidal decussation. The crossing takes place, and that is called as pyramidal decussation, and that is at the level of lower medulla oblongata. It is at the level of lower medulla oblongata. So you just see the diagram, just a diagram to show. So this the crossing will be taking place here, and one will come here and one will come here. This is the lateral CST, this is the lateral corticospinal tract, and it generally comprises of about 85 to 90% of the fibers are crossing at the lateral, and it forms the lateral corticospinal tract. That is, crossing is done here. The next portion that comes just simply below it, that is anterior corticospinal tract, and it just consists of 10 to 15% of the fibers, and that is the uncrossed fibers. So this is about the pyramidal tract. The pyramidal tract is a descending tract. Crossing takes place, that is called as pyramidal decussation, and it is at the level of the lower medulla oblongata. The lateral CST, that is corticospinal spinal tract, consists of about 85 to 90% fiber that crosses there, and the uncrossed fibers form the generally anterior CST, and that is about 10 to 15%. So majority of the fiber crosses, and that composed generally 85 to 90% of the lateral corticospinal tract. So this is generally corticospinal tract crosses at the midline at the level of lower medulla oblongata. Isn't it? It is very easy now. So let's see. The following anomaly occurs due to, ये picture यहाँ पे देखो, this anomaly, what they are showing is this: there is no anencephaly. This is nothing but anencephaly. There is no brain covering, isn't it? So there is no brain covering. So if we see that, this is nothing but a defect in the neural tube. So let's solve everything about this question. We'll do everything about this question, so that any question they ask, we'll be good to go with this much thing. If we just revise this much thing, we'll be good to go with any questions like this. So let's see. Neural tube generally has two pores. Neural tube has two pores, one on the upper end, one on the lower end. So upper end, it is called as anterior neuropore, and one is the posterior neuropore. Anterior neuropore is also called as cranial. On the upper side, that is cranial or rostral neuropore. It closes on 25th day. Generally, it closes on the 25th day, but there is some defect in the closure, or the closure, we can simply say that the closure is not taking place. It will cause anencephaly.
It will cause anencephaly. Anencephaly will be caused due to the problem in the closure of the anterior neuropore, that is also called as cranial or rostral neuropore. Okay. Next, the posterior neuropore. If we talk about the posterior neuropore, that is called as caudal neuropore. Caudal, the below portion. The caudal neuropore closes by 28th day. It generally closes. Physiologically, it closes by 28th day. But if the closure does not take place, if the defect, if there is any defects in this closure, that will result to spina bifida, isn't it? स्पाइना, देखो ऊपर का क्लोज नहीं हुआ यानी कि सर के लेयर का, जनरली ऐसे ही भी याद रख सकते हो, ऊपर वाला नहीं हुआ जनरली सर के लेयर, क्रेनियल वाला नहीं हुआ, इट विल रिजल्ट इन जनरली अनइनसेफेली। और अगर नीचे वाला नहीं हुआ तो दैट विल लीड टू स्पाइना बाइफिडा, क्योंकि ऊपर क्या है, ब्रेन है, और नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इजंट इट? सो हम सबको पता है। सो दिस इज द वे टू रिमेंबर। सो ठीक है, स्पाइना बाइफिडा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज क्रेनियल रैकिस्काइसिस? ठीक है, व्हाट इज क्रेनियल रैकिस्काइसिस? इफ देयर इज एनेंसिफेली प्लस द फेलियर ऑफ स्पाइनल प्रोसेस टू फ्यूज, एनेंसिफेली भी है एंड द स्पाइनल प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट फ्यूजिंग, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज जनरली cranial rachis. We talked generally about what gastrochisis, and the second thing was omphalocele. हमने कहाँ पढ़ा था जनरली? We did that in the एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन, अगर आपको याद हो। गैस्ट्रोकाइसिस यानी कि क्या है, एमनियन के लेवल से कवर नहीं है, और ओम्फैलोसिल में गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहा है, एंड जनरली क्या हो रहा है, जनरली इट इज कवर्ड विद द एमनियन सैक, दैट इज कॉल्ड एज जनरली ओम्फैलोसिल एंड जनरली गैस्ट्रोकाइसिस, वो भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, so this is due to the failure of the closure of cranial neuropore at week 4. चलो, a 62-year-old patient is brought to ER following a suspected stroke. Suspected stroke is there. The patient is unable to speak fluently. ठीक है, ये एफेजिया में से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्पीक फ्लुएंटली थ्रू though he understand the given instructions, which category of the aphasia is most likely present in the patient? Aphasia means absence of speech, isn't it? Aphasia, absence of speech. So generally यहाँ पे क्या बोल रहा है कि speak fluently नहीं कर पा रहा है, he cannot speak, and speak के लिए कौन सा एरिया होता है जनरल? that is Broca's aphasia. This is nothing but Broca's aphasia. We'll talk about this aphasia in the detail here. अभी देखो, वर्निक्स और रिसेप्टिव और फ्लुएंट एफेजिया. वर्निक्स एफेजिया is also called as receptive or fluent aphasia. If we do this much, we'll be good to go with any question in the aphasia portion also. So let's do it. Wernicke's aphasia, that is receptive aphasia or fluent aphasia. It is Wernicke's is the same thing, the same name for this Wernicke's aphasia. इसमें जनरली क्या होता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन और रिटेन लैंग्वेज. रिटेन लैंग्वेज, इस पे जनरली याद रखो, रिटेन लैंग्वेज, मीनिंगलेस स्पीच विल बी देयर. दिस इज नथिंग बट वर्निक्स एफेजिया. ब्रोकाज एफेजिया जो अभी हमने लगाया ऊपर आंसर, एक्सप्रेसिव, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव एफेजिया मीन्स ही इज एबल टू एक्सप्रेस. नॉन फ्लुएंट और अग्रामेटिक एफेजिया भी इसको बोलते हैं. सो जनरली देखो, स्पीच बिकम्स डिफिकल्ट बट पेशेंट अंडरस्टैंड्स द स्पोकन लैंग्वेज. जो आप बोल रहे हो वो पेशेंट समझ रहा है, बट जनरली द स्पीच ऑफ द पेशेंट बिकम्स डिफिकल्ट. दिस इज नॉन फ्लुएंट इफोर्टफुल इफ स्पीच. द वन लाइन विल बी गिवन देयर, द पेशेंट इज ट्राइंग टू हैव नॉन फ्लुएंट एंड ही इज पुटिंग सम इफोर्ट टू स्पीक. दैट इज नथिंग बट जनरली ब्रोकाज एफेजिया होगा. फिजियोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनाटॉमी में भी पूछा जाएगा, मेडिसिन में भी पूछा जाएगा, तीनों में पूछा जाएगा, ठीक है। एनोमिक एफेजिया भी होता है, जिसमें क्या होता है, नेमिंग. जो चीज़ें वो डेली देखा था उसने, उसको अगर आप पूछोगे ये क्या है तो वो नाम नहीं कर पाएगा. दैट इज एनोमिक एफेजिया. अभी हम और बात करेंगे उसका. अभी देखो, ब्रोकाज एरिया दैट इज 44 and 45 एंड वर्निक्स दैट इज 22, 40 and 39 एरियाज आर कनेक्टेड बाय आर्क्यूएट फास्कुलस. आर्क्यूएट फास्कुलस क्या करता है, ब्रोका और वर्निक्स को जनरली कनेक्ट करता है. इफ देयर इज प्रॉब्लम इन आर्क्यूएट फास्किकुलस, इफ देयर इज द प्रॉब्लम इन आर्क्यूएट फास्किकुलस, क्या होगा, कंडक्शन नहीं हो पाएगा इस साइड से उस साइड. ऐसे याद रखो कि थिंग्स कैन नॉट कंडक्ट, कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, क्योंकि दिस इज द आर्क्यूएट फास्कुलस इज द जनरली कनेक्शन बिटवीन द ब्रोका एंड वर्निक्स एरिया. सो देयर विल बी कंडक्शन एफेजिया. कंडक्शन एफेजिया में क्या होगा, जनरली द बज वर्ड दे विल बी गिवन इन द क्वेश्चन विल बी कांट रिपीट द वर्ड्स. आप उसको बोलो कि बोलो ए, तो वो नहीं बोल पाएगा. ही कैन नॉट रिपीट यू. जो आप बोलोगे उसको वो रिपीट नहीं कर पाएगा पेशेंट. सो दिस इज जनरली कंडक्शन एफेजिया. दिस ब्रोकाज 44 and 45 and Hessel's gyrus 41, 42, that is the primary auditory area is connected by uncinate fasciculus. uncinate fasciculus क्यों करता है, ब्रोका एंड हेसल
गाइरस को, ब्रोकाज एंड हेसल्स गाइरस को। अब इसमें जनरली अनसिनेट फास्किकुलस का कनेक्शन है, और अगर इसमें डैमेज हो गया तो देयर विल बी इमोशनल और पर्सनालिटी चेंजेस विल बी देयर। जल्दी देखो, लीजन इन ब्रोका, वर्निक्स एंड आर्क्यूएट, ये जनरली अगर तीनों में हो गया, एवरीथिंग हैज बीन अफेक्टेड, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया एंड आर्क्यूएट फास्कुलस, इफ तीनों डैमेज हो गया देन दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल, एवरीथिंग इज अफेक्टेड सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल अफेजिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल अफेजिया। ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। सो हमको पता चल गया ब्रोका क्या है, वर्निक्स क्या है, ग्लोबल क्या है, कंडक्शन एफिजिया क्या है। ठीक है, एकदम याद रखना है चीज़ें। इसमें ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि जो बज वर्ड्स मैंने बताया ना, जैसे नॉन फ्लुएंट, इफोर्टफुल स्पीच है तो क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं रहा पूरा का पूरा, या फिर कोई चीज़ उसको, जिसका नाम उसको पहले पता था बट अब उसको बोलोगे कि ये क्या चीज़ है, जैसे मैंने ये लाइटर दिखाया और उसको बोला कि ये लाइटर क्या है, तो जनरली वो नहीं बोल पाएगा, पहले उसको पता था बट नाउ ही कैन नॉट टेल कि ये क्या है। सो दैट इज एनोमिक एफेजिया। ठीक है, Substantia nigra is connected to which part of the basal ganglia? Substantia nigra is connected to which part of basal ganglia? Basal ganglia के किस पार्ट में जनरली substantia nigra is connected? So देखो, substantia nigra is connected to striatum. अब इसके जनरली बेसल गैंग्लिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? लेट्स फिनिश बेसल गैंग्लिया नाउ. What they can ask from basal ganglia? अगर बेसल गैंग्लिया को जनरली हम देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉर्पस स्ट्रिएटम। कॉर्पस स्ट्रिएटम जनरली इन टेलेंसीफेलॉन एरिया, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कॉर्पस स्ट्रिएटम lies in the telencephalon areas and it consists of caudate nucleus plus lentiform nucleus. Caudate nucleus plus lentiform. This lentiform again comprises of the putamen and the globus pallidus. Globus pallidus and the putamen together will be forming lentiform nucleus, and lentiform nucleus with the caudate nucleus. This is corpus striatum, or simply they will be giving in the question striatum. This caudate plus putamen, if this caudate combines with the putamen, that will be called as neostriatum. ठीक है, corpus striatum यानी कि caudate plus lentiform nucleus, and this caudate plus putamen if they are giving, that is nothing but the neostriatum. ठीक है, subthalamic nucleus, it is generally lying in the diencephalon. Substantia nigra, it is lying in the mesencephalon area. ठीक है, mesencephalon area. अब इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लो कि जनरली लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या, लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया पे कहाँ पे क्या होगा तो क्या हो जाएगा। देखो, जनरली इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द ग्लोबस पैलिडस, है ना, हमने अभी पढ़ा था कि प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस टुगेदर फॉर्म्स लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द ग्लोबस पैलिडस देयर विल बी एथियोटोसिस। एथियोटोसिस, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। प्यूटामेन में प्रॉब्लम होगा, देयर विल बी कोरिया। ठीक है, इफ देयर इज सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रॉब्लम, दैट विल लीड टू पार्किंसन, सबको पता है जनरली, है ना। And if there is problem in subthalamus region, that will lead to hemibalismus. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितना भी आई लिखूँ वो भी कम है। ठीक है, इसमें अभी देखो जनरली मैंने ऊपर मेसेंसिफेलन टेलेंसिफेलन बताया, तो उसका जनरल थोड़ा सा सबको पता है बट फिर भी कर लेते हैं हम। जनरली पार्ट्स ऑफ ब्रेन में अगर फोर ब्रेन को देखें तो वहाँ पे फोर ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्रोसेंसिफेलन, ये उधर का लेटिन वर्ड के हिसाब से जैसा जैसा है वैसा। देखो, फोर ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोरेन प्रोसेंसिफेलन बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टेलेंसिफेलन एंड डायंसिफेलन। दिस टेलेंसिफेलन नथिंग बट सेरेब्रम एंड दिस डायंसिफेलन इज नथिंग बट द थैलेमस। आगे देखो, मिड ब्रेन को हम क्या करते हैं, मेसेंसिफेलन, एंड हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड एज रंबोएंसिफेलन। रंबोएंसिफेलन यानी कि इट कंसिस्ट्स ऑफ मेटेंसिफेलन एंड माइलेंसिफेलन। मेटेंसिफेलन जनरली कंसिस्ट्स ऑफ pons and the cerebellum, and myelencephalon generally consists of the medulla oblongata. ठीक है, चलो, ये तो जरूरत नहीं थी, सबको पता है बट जनरली लेट्स टॉक है, एक बार कर ले। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, स्ट्रिएटम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर इन द गिवन इमेज। देखो, ये इमेज इतना ज़्यादा क्लियर है ना, इसलिए मैंने इसका ये जो जनरली था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। सो जनरली देखो, इसमें क्या हो रहा है, हमको ये एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। अब इसमें उतना क्लियर तो है नहीं बट जनरली हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, दिस एरिया, ये वाला एरिया है जनरली, है ना, एंड दिस इज नथिंग बट एंटेरियर लिम्ब ऑफ द एंटेरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। जनरली इंटरनल कैप्सूल को मार्क कर रहा है ये वाला एरिया। देखो, दिस एरिया, दिस इज नथिंग बट प्यूटामेन, है ना। अगर हम ये एरिया देखें जनरली, ये वाला एरिया, दिस इज नथिंग बट थैलामस, दिस इज नथिंग बट थैलामस। ठीक है, दिस इज क्या, थैलामस। अगर आगे देखो आप जनरली ये वाला एरिया, सो दिस इज नथिंग बट स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, है ना। और जनरली और भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जनरली देखो, सो दिस इज नीचे इस ग्रेट सेरिब्रल वेन है, अट्रियम ऑफ लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे आता है। दिस इज नथिंग बट द फॉर्निक्स, है ना, ये फॉर्निक्स है। ये जनरली अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज नथिंग बट जनरली इंटरनल कैप्सूल। ये उल्टा हो गया है ना, पिक्चर उल्टा हो गया, कोई नहीं, चलो, ये इंटरनल कैप्सूल है ना।
ये जनरली हमारा लैटरल वेंट्रिकल है, एंड ये जनरली क्या है यहाँ पे एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सुपेरियर सजाइटल साइनस, एंड दिस इज द जनरली फ्रंटल लोब। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी नीड टू नो अबाउट दिस पिक्चर यहाँ पे। ठीक है, इतना हमको याद करना होगा। ठीक है, ये पिक्चर में उतना क्लियर है नहीं, सो जनरली आई हैड पुट दिस फिगर आउट एट हेयर। ठीक है, सो दिस इज आवर फिगर। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। सो दिस इज नथिंग बट कॉर्पस कैलोसम, ये ऊपर वाला पोर्शन दैट इज कॉर्पस कैलोसम है ना, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। और ये जनरली क्या लेटरल वेंट्रिकल, ये नीचे आएगा थर्ड वेंट्रिकल में, और ये नीचे जाके यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म करेगा। सो दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज इंटरनल कैप्सूल, दिस इज द एमआरआई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एमआरआई ऑफ द ब्रेन का पिक्चर हमको दिया हुआ। सर द स्ट्रक्चर दे आर आस्किंग इज नथिंग बट द इंटरनल कैप्सूल। नेम द ड्यूरल वीनस साइनस एरो मार्क्ड इन द रेडियोग्राफ। इस रेडियोग्राफ में जनरली नेम द ड्यूरल वीनस साइनस, जो ड्यूरल वीनस साइनस यहाँ पे दिखाया गया है, दिस साइनस इज नथिंग बट द स्ट्रेट साइनस, सबको पता है दिस इज द स्ट्रेट साइनस। आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर इन द रेडियोग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप देखो इसको जनरली, तो मैंने यहाँ पे करके रखा, ये फिगर आई एम टेलिंग अगेन कि उतना क्लियर है नहीं, इसके लिए जनरली मैं क्या करता हूँ कि इस ऐसे जो उस चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है उसको मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पे रख देता हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लेना। फर्स्ट कमेंट में मैंने नीचे रख दिया, ये देखो दिस एरिया इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है कॉर्पस कैलोसम। ये यहाँ पर जो छोटा सा एरिया दिख रहा है दिस इज फॉर्निक्स है ना, और ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज मिड ब्रेन, और ये यहाँ पे क्या है मैमिलरी बॉडी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे जनरली है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है पॉन्स दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट सेरेबेलम, एंड दिस इज द मेड्यूला ऑब्लांगाटा। सो व्हाट दे आर आस्किंग हियर इज कि ये वाला एरिया कौन सा है, सो दिस इज नथिंग बट पॉन्स। ठीक है, ये क्या है जनरली पॉन्स है। और यहाँ पे देखो एक्सटेंट इसका जनरली अगर स्पाइनल कोड के बारे में हम बात करें तो स्पाइनल कोड का ये एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं यहीं पे। एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जनरली क्या होता है C1 to L1, द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 इन एडल्ट्स, एंड C1 to L3 दैट इज द अपर बॉर्डर। ठीक है, ये जनरली किस में होता है अपर बॉर्डर ऑफ L3 पे क्या इंड होता है जनरली नियोनेट्स में, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे किस में इंड होता है जनरली एडल्ट्स में, ये याद रखना। ठीक है, C1 to L1 दैट इज एडल्ट, एंड C1 to L3 इन द नियोनेट्स। अगर हम लंबर पंक्चर की बात करें तो बेस्ट साइट फॉर लंबर पंक्चर विल बी L3 to L4। ठीक है, L3 to L4। अब थोड़ा अगर और देख लें हम जनरली यहाँ पे है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब अगर हम ब्रेन स्टीम की बात करें, सो ब्रेन स्टीम विल बी कंप्राइजिंग ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा, दिस थ्री विल बी टुगेदर कॉल्ड एज ब्रेन स्टीम। मिड ब्रेन से जनरली किसकी ओरिजिन होती है थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व का। फोर्थ नर्व इज द ओनली नर्व टू हैव द डोर्सल ओरिजिन। पूरे जितने भी नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स उसमें ओनली एक फोर्थ नर्व है जिसका क्या है जनरली डॉर्सल ओरिजिन है, एंड इज द लॉन्गेस्ट इंट्रा, दिस नर्व हैज द फोर्थ नर्व हैज द लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स, एंड देयर इज इंटरनल डेक्यूसेशन, द क्रॉसिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस। पॉन्स का अगर देखें तो जनरली फिफ्थ नर्व विल बी ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से क्या निकलता है फिफ्थ नर्व। सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ जनरली इट अराइजेज फ्रॉम द पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। द मेड्यूला ऑब्लांगाटा विल गिव राइज टू 9th 10th एंड 11th एंड 12th नर्व, जिसमें 9th 10th एंड 11th फ्रॉम द ओलिव दैट इज द कॉमन न्यूक्लियस होता है इनका, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस बोलते हैं, एंड 12th विल बी फ्रॉम द पिरामिड एंड द ओलिव। चलो आगे देखते हैं। ओलिव इज एलिवेटेड, ओलिव जब हम पिक्चर में देखते हैं तो कैसा दिखता है एलिवेटेड जैसा दिखता है। वाई इज इट एलिवेटेड, इट इज एलिवेटेड ड्यू टू द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। pyramid is elevated, pyramid also we can see it is looking like elevated portion। so pyramid में generally क्या होता है due to the pyramidal tract descending tract, pyramidal tract जो ऊपर हमने बात किया that is descending tract and crossing over generally उसका कहाँ पर होता है जनरली मेड्यूला ऑब्लांगाटा में। ठीक है, अनक्रॉस्ड इधर 10-15% और उधर क्रॉस जो हमने देखा था 80-85% विल बी फाइबर्स। चलो आगे देखो। अ पेशेंट प्रेजेंटेड where the physician noted that all extraocular muscles have been paralyzed, the most probable level of lesion, most probable level of देखो सप्लाई ऑफ एक्स्ट्राक्यूलर मसल अगर हम जनरली देखें तो जनरली क्रेनियल नर्व 3 जनरली किसको करता है ऑक्यूलोमोटर को, फोर्थ जनरली ट्रोक्लियर को। इसका ओरिजिन कहाँ है जनरली मिड ब्रेन में है ना, हमने अभी ऊपर देखा देखो मिड ब्रेन से क्या क्या निकलता है, मिड ब्रेन से जनरली हमारा क्या निकलता है थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व है ना। और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का हमने पढ़ा था पहले से हम नीट पीजी के दिन से यूजी के दिन से पढ़ रहे हैं कि LR6 SO4 लेटरल रेक्टस 6 और सुपेरियर ऑब्लिक फोर्थ एंड रेस्ट ऑल बाई 3। तो यानी कि फोर्थ और जो जनरली ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर जो थर्ड और फोर्थ नर्व है वो जनरली कहाँ से निकलता है मिड ब्रेन। सो ऑफ कोर्स द लीजन विल बी एट द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन, सो हियर द मिड ब्रेन विल बी आवर ऑप्शन। टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन अ न्यू बॉर्न, देखो मैंने ऊपर ही बताया था न्यू बॉर्न में नियोनेट में अगर हम देखें तो जनरली क्या होता है L3 के अपर बॉर्डर पे, सो देयर विल बी
यहाँ पे अपर बॉर्डर दिया नहीं है, सो जनरली विल गो विथ लोअर बॉर्डर ऑफ द L3, बट एक्चुअली इट विल बी जनरली गोइंग विद द अपर बॉर्डर ऑफ द L3। यहाँ पे नहीं दिया है तो लोअर बॉर्डर को हम लगाएंगे, ठीक है, L3। इन एडल्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली इंड्स एट, देखो तो यहाँ पे एडल्ट्स में मैंने क्या बोला, C1 to L1 जनरली लोअर बॉर्डर, C1 to L1 लोअर बॉर्डर, सो लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ठीक है। वेरी इजी, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया इन चीज़ों को तो इजी हो गया। अभी देखो ऐसे पिक्चर्स भी आजकल पूछे जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखो, ये जनरली कैडावेरिक इमेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, अगर आपको इस टॉपिक के सारे कैडावेरिक इमेज विथ नेमिंग चाहिए तो प्लीज़ डू अ कमेंट, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो बना के पठा दूंगा। सो जनरली देखो, दिस इज जनरली लॉन्गिट्यूडनल फीचर। अगर इसकी हम बात करें ए नंबर वाला जनरली, सो दिस इज नथिंग बट द कॉर्डेट न्यूक्लियस, है ना। ये जनरली अगर हम उस ऊपर हमने ये देख ही लिया, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल इंटरनल कैप्सूल, है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल है। यहाँ पे देखो ये 2 हैं और ये 1 है ना। जनरली लेंटिफॉर्म इंटरनल कैप्सूल में जनरली क्या होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, जिसमें 2 ग्लोबस पैलिडस हैं और एक क्या है, जनरली प्यूटामेन है, ठीक है, एक प्यूटामेन है। दिस इज फॉर्निक्स, है ना, सेप्टम पेल्यूसिडम, ये बीच वाला सेप्टम पेल्यूसिडम, और ये इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, थैलमस, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और ये बी नंबर क्या है यहाँ पे, थैलमस है, दिस इज नथिंग बट थैलमस। सो जनरली हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एंड इज सप्लाइड थ्रू पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, इट इज सप्लाइड बाय व्हिच गैंग्लियन। देखो, लैक्रिमल ग्लैंड इज सप्लाइड थ्रू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू जनरली लैक्रिमल ग्लैंड इज सप्लाइड, इट इज सप्लाइड बाय व्हिच गैंग्लियन। सो जनरली दिस इज नथिंग द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। देखो, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन किस किस को सप्लाई करता है, जनरली लैक्रिमल ग्लैंड, पैरानेजल साइनसेस, ग्लैंड्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी, फेरिंग्स, gingiva and mucous membrane and the glands of the hard palate. So generally this is by the pterygopalatine ganglion. आगे देखो, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड विथ एरो। यहाँ पे एरो से जो मार्क किया गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको मार्क किया जा रहा है। सो जनरली ये देखो, दिस इज नथिंग बट आई वाला ऑर्बिट्स है, जनरली दिस इज फ्रंटल लोब, ये मिड ब्रेन है, दिस इज टेम्पोरल लोब, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, एंड दिस इज जनरली ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब, ये सब हमने देख लिया, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये हमारा ब्रेन की इमेज है। सो जनरली द स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर मार्क्ड इज नथिंग बट बटरफ्लाई टाइप का शेप है एक, जनरल दैट इज मिड ब्रेन। आगे देखो, मैमिलरी बॉडी प्रोजेक्ट्स भाया, मैमिलरी बॉडी प्रोजेक्ट्स भाया, जनरली देखो एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, जनरली हाथ से ड्रॉन किया हुआ इमेज है, ये जनरली मैमिलरी बॉडी है, दिस इज नथिंग बट द मैमिलरी बॉडी। अब मैमिलरी बॉडी यहाँ से देखो ऐसे स्टार्ट होता है, जनरली हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होता है ना, और ये फॉर्निक्स बन के यहाँ पे जाता है, एंड होता है कहाँ पे, मैमिलरी बॉडी पर। सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग फॉर्निक्स, ये हिप्पोकैम्पस है और ये क्या है, मैमिलरी बॉडी। अब ये दोनों साइड का जो बीच में कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पल कमिसर, दिस कनेक्ट्स जनरली द टू फॉर्निक्स, दैट इज हिप्पोकैम्पस। अब इसको देखो, बिगिंस फ्रॉम, ये फॉर्निक्स जो है जनरली इट बिगिंस फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द फॉर्निक्स बिगिंस फ्रॉम हिप्पोकैम्पस, यहाँ से शुरू होता है एंड कनेक्ट्स द मैमिलरी बॉडी, ये 2 मैमिलरी बॉडी को जनरली दोनों साइड पे क्या करता है, कनेक्ट करता है, और 2 फॉर्निक्स को कनेक्ट करता है हिप्पोकैम्पल कमिसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया, पहले ही हमने बात कर चुका है इसका, दिस इज आर्क्यूएट फास्किक्यूलस। The most medially located nuclei of cerebellum, the most medially located nuclei of cerebellum is generally फास्टिजियाई, ठीक है, मोस्ट मेडियली लोकेटेड न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियस फास्टिजाई, फास्टिजियस न्यूक्लियस। जनरली देखो यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन, जनरली ये आर्क्वेट जो होता है जनरली कंडक्शन एफेजिया करता है, ब्रोका एंड वर्निक्स आर कनेक्टेड बाय आर्क्वेट फास्किकुलस, ब्रोका एंड हेसल गायरस दैट इज प्राइमरी ऑडिटोरिया इज कनेक्टेड बाय ऑनसिनेट फास्किकुलस। इस यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगा तो इमोशनल या फिर पर्सनलिटी चेंजेज होंगे। लीजन इन ब्रोका, वर्निक्स एंड आर्क्वेट तीनों में हो गया तो ग्लोबल एफेजिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिखा। अभी देखो सेरेबेलम से ये पूछा गया न्यूक्लियस फास्टिजियस का आंसर हमने कर लिया, बट जनरली डीप न्यूक्लियाई ऑफ सेरेबेलम की अगर हम बात करें तो डेंटेट न्यूक्लियस क्या होता है, द लेटरल मोस्ट साइड पे क्या होता है, जनरली dentate nucleus होता है and it is the largest nucleus, the largest nucleus of cerebellum if they ask, that is nothing but the dentate nucleus, and generally it helps in the coordination of the limb movements, coordination of the limb movements, and the dentate nucleus का generally कैसा दिखता है, crumpled paper bag shape दिखता है, crumpled paper bag, crumpled tissue appearance कहाँ दिखता है हमको, जनरली गाउचर्स डिजीज में, है ना, crumpled tissue। so generally crumpled paper bag shape कहाँ पे दिखता है, जनरली dentate nucleus का shape दिखता है। इम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, इम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोज न्यूक्लियस को जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली इंटरपोजिटस न्यूक्लियस। दिस रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ इप्सी लैटरल एक्सट्रीमिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप न्यूक्लियाई ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फास्टिजियल न्यूक्लियस, दैट इज द मेडियल मोस्ट, ठीक है, मेडियल मोस्ट है। लेटरल मोस्ट क्या है, डेंटेट न्यूक्लियस, एंड डेंटेट न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस। दिस फास्टिजियल न्यूक्लियस रेगुलेट्स द बॉडी पोस्चर, इट रेगुलेट्स द बॉडी पोस्चर, जनरली इट विल बी रेगुलेटिंग द बॉडी पोस्चर। चलो कुछ ये सारे हमने एक ही जगह पे कर लिया। अभी देखो
ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कोड इज थ्रू, चलो स्पाइनल कोड का पूरा ब्लड सप्लाई ही देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से फिर फ्यूचर में करे तो ना छूटे। देखो एक लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी होता है और एक सेगमेंटल आर्टरी होता है। जनरली ये लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी में जनरली क्या होगा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वन, एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो सप्लाई करेगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Posterior spinal artery will be 2 in the number, which is the branch of longitudinal artery, and generally it will be supplying the posterior 1/3 of the generally spinal cord. If we talk about the segmental arteries, they reinforce the longitudinal arteries at various places. Various places पे क्या करेंगे, generally they will reinforce the generally longitudinal artery. So major contributor इसमें क्या होता है, artery of Adam Kewick. Adam Kewick जनरली कहाँ होता है, जनरली इट विल बी सप्लाइंग द लोअर स्पाइनल कॉर्ड. मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द सेगमेंटल आर्टरीज जनरली दे आर नथिंग बट द आर्टरी ऑफ एडम क्यूइक. ठीक है, सो आर्टरी ऑफ एडम क्यूइक, इसमें जनरली उतना डीप में तो पूछा नहीं, इसमें सिंपली पूछा है कि कितने हैं, 1 एंटेरियर एंड 2 पोस्टेरियर. हमने अभी देख लिया कि जनरली कितने हैं, 1 एंटेरियर एंड 2 पोस्टेरियर आर्टरी. ठीक है, ऊपर देखो 1 इन नंबर एंटेरियर स्पाइनल और पोस्टेरियर स्पाइनल कितने, 2 इन नंबर, पोस्टेरियर 1/3 को करते हैं, एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी 1 इन नंबर एंड एंटेरियर 2/3 को सप्लाई करता है. चलो एंटेरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय, देख लो यहाँ पे एंटेरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी. चलो हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन सेरेबेलम, अगर बस सेरेबेलम की बात की जाए जनरली, सो सेरेबेलम हैज 2 हेमिस्फीयर ईच विथ 3 लोब्स, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 × 3 दैट इज टोटल विल बी 6 लोब्स. इसमें देखो लोब्स में फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब्स, जनरली इसको हम इन्फीरियर सरफेस पे देखते हैं, एंड देयर विल बी फ्लॉक्यूलस, क्रॉस ऑफ फ्लॉक्यूलस एंड नोडुल विल बी देयर. एंटेरियर लोब की बात करें तो दिस इज प्रायर टू प्राइमरी फीजर, एंड पोस्टेरियर लोब विल बी बिटवीन प्राइमरी एंड पोस्टेरोलैटरल फीजर. तो सारे लोब्स हमने यहाँ पे कर लिए. ठीक है, 2 साइड होते हैं जनरली, 2 हेमिस्फीयर्स, और दोनों में 3-3 होता है, सो देयर विल बी 6 lobes. Which is the smallest lobe of cerebellum? The smallest lobe जो हमने अभी बात किया यहाँ पे, that is nothing but flocculonodular lobe. ठीक है, flocculonodular lobe. वर्टिब्रल आर्टरी इज डिराइव्ड फ्रॉम, वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से डिराइव होता है जनरल, देखो सबक्लेवियन आर्टरी की अगर हम बात करें, पार्ट्स एंड ब्रांचेज ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी फ्रॉम ओरिजिन टू मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केलिनियस एंटेरियर मसल. इसमें से 3 ब्रांचेज निकलते हैं फर्स्ट पार्ट से, एक वर्टिब्रल आर्टरी. समझ में आ गया कहाँ से आ रहा है वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक. 3 ब्रांचेज होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरली सबक्लेवियन आर्टरी, दैट इज वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल trunk. Second part will be behind the scalenus anterior and there will be one branch that is costocervical trunk. डिवीजन इसका फर्दर अगर costocervical trunk की डिवीजन देखें तो सुपेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और जनरली डीप सर्वाइकल आर्टरी विल बी देयर. थर्ड पार्ट फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्केलेनियस एंटीरियर टू द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. थर्ड पार्ट का एक और ब्रांच होता है दैट इज डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी. सो एवरीथिंग वी हैव सीन हियर. सो सबक्लेवियन आर्टरी, सो जनरली कहाँ से, जनरली इट विल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. Anterior inferior cerebellar artery is a branch of, देखो anterior inferior cerebellar artery. Vertebral artery को अगर हम देखें तो the vertebral artery will further branch off in posterior inferior cerebellar artery, which is the largest branch. Again anterior spinal artery, posterior spinal artery and basilar artery. Posterior spinal and then भी basilar artery. If we see this basilar artery again, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. This basilar artery will further give rise to 5 branches: posterior cerebral, pontine artery, anterior inferior cerebral artery and labyrinthine artery and the superior cerebellar artery. So हमको जनरली आंसर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, anterior inferior cerebellar artery. Anterior inferior cerebellar artery will be the branch of generally basilar artery. Subarachnoid space extends up to, सब एरेक्नोइड स्पेस जनरली पूछ रहा है, सो जनरली दैट विल बी जनरली लोअर बॉर्डर ऑफ द S2. देखो सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, इनसाइड द लोअर बॉर्डर ऑफ S2, स्पेस बिटवीन द एरेक्नोइड एंड पायामीटर, DAP करके पढ़ा, सबसे ऊपर D यानी कि ड्यूरामीटर, उसके बाद A यानी कि एरेक्नोइड मीटर, और उसके नीचे जनरली क्या होता है P यानी कि पायामीटर. CSF इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस, है ना, और आइडियल स्पेस फॉर लंबर पंक्चर होता है ये, एंड लंबर पंक्चर बिटवीन L3 एंड L4 हमने ऊपर ही पढ़ा था. आगे देखो लेप्टोमेनिंजेज इज फाउंड बाय, देखो मेनिंजेज की बात अगर हम करें तो मेनिंजेज विल बी डिवाइडेड इनटू द पैची मेनिंजेज एंड द लेप्टोमेनिंजेज. पैची मींस थिक पार्ट एंड लेप्टो मींस थिन, इन जनरल लेटिन वर्ड है. सो पैची मेनिंजेज थिक पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ ड्यूरामेटर, द आउटर टफेस्ट लेयर, एंड द 2 लेयर्ड इन ब्रेन, दैट विल बी जनरली 2 लेयर्ड इन ब्रेन. ड्यूरामेटर विल बी 2 लेयर्ड इन ब्रेन, आउटर पेरियोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिंजियल लेयर. एंड स्पाइनल कोड में जब ये जाएगा तो इट विल बी शोइंग ओनली 1 लेयर. ब्रेन में 2 लेयर शो करता है ड्यूरामेटर, डी फॉर ड्यूरा, डी फॉर 2 लेयर, दैट इज आउटर पेरियोस्टियल एंड इनर मेनिंजियल लेयर.
स्पाइनल कोड में जाके एक ही लेयर में रह जाता है। लेप्टोमेनिंजेस की बात करें तो इट विल कंटेन एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर क्या है, मिडल थिन वेब लाइक, इसलिए एरेक्नोइड बोलते हैं इसको, स्पाइडर वेब लाइक। बिलो इट इज सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। बिलो एरेक्नोइड मैटर के बाद क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस, उसके बाद पाया मैटर, वेरी थिन इनर डेलिकेट लेयर, एडहियर्स टाइटली टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सो पेरेन्काइमा के साथ कौन है जनरली टच में करके पूछेगा, तो दैट इज पाया मैटर, ठीक है। अभी CSF का जनरल देखो, CSF कहाँ होता है जनरली, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस, है ना, इन लेटरल वेंट्रिकल्स। वॉल्यूम 150 ml होता है, प्रोड्यूस्ड 500 ml पर डे। अब जनरली वॉल्यूम 150 ही बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ मैं ही ये बता रहा हूँ कि प्रोड्यूस 500 ml, तो और कहाँ गया 350 ml। दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एरेक्नोइड विलाई एंड नॉर्मल वैल्यू इसका जनरली 10 to 18 cm H2O प्रेशर होता है, ठीक है। चलो इतना कर लिया तो आधा क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सिल्वियन फीचर ये तुमको पता है, टेम्पोरल लोब फ्रॉम फ्रंटोपेराइटल एरियाज। Which of these is a bicondylar joint? Bicondylar joints में जनरली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड नी जॉइंट आते हैं। पाइवट और ट्रोकोइड जॉइंट्स में जनरली superior and inferior radioulnar joint and the medial atlantoaxial joint. So this is temporomandibular joints, that is bicondylar joints. Interphalangeal joint कहते हो कैसे होते हैं, हिंज जॉइंट और यूनिएक्सियल जॉइंट। वहीं पे अटलांटोक्सिपिटल की बात की जाए तो इलिप्सोइड और बाइएक्सियल जॉइंट, और इंटरमेटाटार्सल जॉइंट इज नथिंग बट द प्लेन जॉइंट। कुछ स्ट्रक्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फोरामेन ओवेल। देखो फोरामेन ओवेल को हमने एक निमोनिक से याद किया था, मेल करके, ठीक है। सो मैंडिबुलर नर्व दैट इज द V3, ये 3 हमने पढ़ा है ना, मैंडिबुलर नर्व, ये नीचे वाला मैंडिबुलर, थर्ड ब्रांच ऑफ द फिफ्थ, ठीक है, ट्राइजेमाइनल का। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड एमिसरी वेन। सो MALE जनरल दिस विल बी पासिंग थ्रू द फोरामेन ओवेल। फोरामेन रोटंडम से क्या पास करता है, मैक्सिलरी नर्व दैट इज द V2, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व। फोरामेन लैक्सरम के साथ क्या पास करता है जनरली, द कंटेंट्स इन द फोरामेन लैक्सरम विल बी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड द डीप पेट्रोसल नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी देखो फोरामेन स्पाइनोसम से क्या करता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, नर्वस स्पाइनोसस, पोस्टीरियर ट्रंक ऑफ द मिडिल मेनिंजियल वेन, एंड जनरली दिस इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी व्हिच इज जनरली आर्टरी इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। ये जनरली हमको सर्जरी में भी पूछेगा। कैरोटिड कैनल से क्या पास करता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वीनस एंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड द आर्टरी, दिस विल बी पासिंग थ्रू द कैरोटिड जनरली कैनल। जुगुलर फोरामेन से क्या पास करता है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस दैट इज 9th and 10th cranial nerve एंड सिग्मोइड साइनस इन द जुगुलर फोरामेन, ठीक है। अभी आगे देखो, व्हाट आर द सेल्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ सेरेबेलम। देखो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द सेरेबेलम, देखो सेरेबेलर कॉर्टेक्स को अगर देखा जाए तो एक आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर और एक ग्रैन्युलर लेयर होता है। आउटर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर लेयर, जहाँ पे स्टीलेट सेल्स, बास्केट सेल्स होते हैं, स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, 3 लेयर और वहाँ पे 5 सेल्स होंगे। जैसे देखो मिडिल लेयर में क्या होगा, परकिंजे लेयर होगा, जिसको जनरली कौन से सेल्स होंगे, परकिंजे सेल्स होंगे। ग्रैन्युलर लेयर में क्या होगा, ग्रैन्युलर सेल्स होंगे एंड गोल्गी सेल्स होंगे, है ना। जनरली यहाँ पे क्या होगा, ये सारी सेल्स जो है वो निगेटिव, यानी कि जनरली मैंने माइनस लिख के रखा है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस ऑल सेल्स आर इनहिबिटरी एंड ओनली एक्साइटेटरी सेल विल बी द ग्रैन्युलर सेल, ओनली एक्साइटेटरी सेल विल बी द ग्रैन्युलर सेल। सो ये याद रखना है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स के 5 सेल्स, 3 लेयर 5 सेल, आउटर मिडिल ग्रैन्युलर लेयर, जिसको मॉलिक्यूलर परकिंजे और ग्रैन्युलर लेयर ही बोलते हैं ना। शुरू वाले में 2, बीच वाले में 1 और नीचे वाले में फिर 2 सेल्स होंगे, वो हमको बहुत ज़्यादा याद रखना। सो व्हाट आर द सेल्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ सेरेबेलम, दैट इज मॉलिक्यूलर लेयर हैज द स्टीलेट एंड बास्केट एंड स्टीलेट सेल्स। सो 2 और 4 कहाँ पे, यहाँ पे। सो दिस विल बी आवर आंसर। चलो चलो जी आगे देखते हैं। foramen transversarium found only in the cervical vertebra and it contains vertebral artery। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, जनरली foramen transversarium is found at, generally it is found in the cervical vertebra only, so cervical vertebra। which of the following areas of the brain is not a primary sensory area। primary sensory cortex जनरली क्या होता है, एरिया 1 2 3 जनरली सेंट्रल गायरस में होता है। एरिया 4 जो है दैट इज प्राइमरी वॉल्यूंटरी कॉर्टेक्स, सो जनरली दैट विल बी नॉट देयर। which is a part of limbic system। part of limbic system अगर देखें तो limbic system will be consisting of generally सिंगुलेट गायरस, हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स एंड मैमिलरी बॉडी। अब ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल एंड सेक्सुअल एंड द फूड हैबिट्स, इमोशनल एंड सेक्सुअल बिहेवियर प्लस द फूड हैबिट्स। न्यूक्लियस एम्बिगुअस हमने ऊपर ही पढ़ा था। न्यूक्लियस एम्बिगुअस जनरली क्या होता है, 3 पार्ट होता है उसका, रोस्ट्रल पार्ट, मिडल पार्ट एंड कॉडल पोल। रोस्ट्रल पार्ट हैज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, मिडल पार्ट हैज वेगस नर्व एंड द कॉडल पोल हैज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। सो जनरली न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज कंपोज्ड ऑफ 9 10 11 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस। सेकेंड क्रेनियल नर्व, सेकेंड क्या है, ऑप्टिक नर्व है, सबको पता है जनरल। देखो पढ़ लो एक बार, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लिया, ट्राइजेमाइनल, ऑब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल नर्व, 12 नर्व्स। व्हाट इज द साइट ऑफ लीजन अफेक्टिंग क्रेनियल नर्व, 6 7 एंड
8 हमने पढ़ा था 6 7 एंड 8 जनरली को 6 7 एंड ऊपर ही हमने कर लिया दिस विल बी लाइंग इन द पॉन्स रीजन सो पॉन्स विल बी generally our answer. A patient is presented with weakness of the right side of the face. Right side of the face में weakness है, there is associated same side loss of pain and temperature of the face and left side of the body. The lesion is most likely located कहाँ पे होगा जनरली? This will be located at the lateral pontine. कहीं क्यों? वहीं से सप्लाई होता है. Lateral pontine syndrome के पूरे जो है जनरली दिस फीचर इज सजेस्टिंग दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ द लैटरल पोन्टाइन सिंड्रोम और वहाँ पे क्या होगा जनरली लैटरल पोन्स विल बी अफेक्टेड. सुपेरियर टेम्पोरल गाइरस लीजन लीड्स टू हमको पता हुआ नेक्स्ट एफिजिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डिकोसेट्स विद इन द ब्रेन दैट इज ट्रॉक्लियर हमने ऊपर ही पढ़ा था. व्हिच क्रेनियल नर्व हैज द लार्जेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स ऑफ कोर्स ट्रॉक्लियर फोर्थ वाला जो था डोर्सल ओरिजिन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज नोन एज क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी. क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी जनरली किसको बोलते हैं? वेगस नर्व को ही बोलते हैं. आगे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंजरी टू क्रेनियल नर्व थर्ड फोर्थ एंड वन फर्स्ट ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व है दैट इज नथिंग बट द स्फिनोइड बोन ट्यूमर है ना. ये जनरली लोकेशन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन है. दिस इज नॉट द PYQ बट दीज आल्सो कैन बी आस्क्ड. सो कहीं ना कहीं पे पूछा जा चुका है या फिर नीट PG या फिर कहीं पे पूछा गया. व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नर्व. रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5 हमने लास्ट वाली वीडियो में भी किया था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन. लोअर मोटर न्यूरॉन में जनरली पेरिफेरल गैंग्लिया विल नॉट बी पार्ट. एंटीरियर नर्व रूट पेरिफेरल नर्व एंड एंटीरियर हॉर्न सेल्स जनरली दे कंट्रीब्यूट टू द लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन. अभी देखो लेफ्ट स्पाइनल है ना लेमिनिस्कस कंटेंट्स व्हिच फाइबर. इट विल कंसिस्ट राइट साइडेड पिन टच एंड टेम्परेचर फाइबर्स. सेरेबेलर कॉर्टेक्स कंटेंट्स पर्किंजे सेल्स. कफर सेल्स और ईटो सेल्स तो जनरली क्या हो जाएगा मैक्रोफेजेज इन द जनरली लीवर हो जाएगा. ठीक है. Cerebellar connection to other parts of the brain is projected through which cell? Generally due to Purkinje cells. ये 5 cells हमने पढ़े थे वहाँ पे. Which nerve passes from the parapharyngeal space? That is the 10th nerve. Which of the following tract is seen in the posterior column of spinal cord? Posterior column of spinal cord consists fasciculus gracilis. Which is the most prominent spinous process? The spinous process will be C7. C7 is the most prominent spinous process, which is not a part of basal ganglia. Basal ganglia का part generally thalamus is not the part of the basal ganglia. ठीक है. सो दिस मच इफ वी डू विल बी गुड टू गो. ये लेंटिकुलर न्यूक्लियस हमने पढ़ा था. ग्लोबस पैलिडस भी हमने पढ़ा था है ना. 2 ग्लोबस पैलिडस और एक जनरली ट्यूटामेन दे विल टुगेदर फॉर्म लेंटिकुलर न्यूक्लियस. कोडेट न्यूक्लियस हमने ऊपर स्ट्रिएटम के लेयर में पढ़ा था. दिस इज ऑल फॉर द न्यूरोएनाटॉमी. इफ यू डू दिस मच you will be good to go with any questions. You just try. After doing this, either you have the marrow question bank or the prep ladder question bank. After doing this and looking through all these generally explanations, इतना अगर आपने याद कर लिया आप जाके कोई और भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर भी सॉल्व कर लिया, बट अगर कोई और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप जाके करो एंड यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी 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 इजी. और अगर इजी लगा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि दिस वीडियो इज बीइंग हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी एंड आई विल बी पुटिंग मोर एंड मोर वीडियोज. ठीक है, मोर एंड मोर वीडियोज I'll be putting. So this much for neuroanatomy. Thank you so much. Let's meet in the next video. Chalo.